Hello everyone, I am Payal Vatham, your geography educator on Arpita Sharma classes. I will be explaining some key topics in geography for UPSC CSE prelims examination. Before we start class, here is a wonderful announcement for all of you. Unacademy Combat, the most competitive gamified UPSC CSE battle is here to be conducted on 7th February 2021 at 11 am. Enroll now for free. Link is in the description box. Use code ARPITA10 to unlock the plus experience for free and start learning from the best. How to enroll in the quizzes for free? Download the Unacademy Learning app, registered or sign into the app, select the goal as UPSC CSE, click on the link above and then on enroll now. When prompted, please enter the code ARPITA10 to achieve your free plan. Unacademy Combat is a battle to challenge thousands of learners and win exciting rewards and prizes. It's India's biggest fortnightly competition for UPSC CSE. Extensive quizzes with 6 rounds of 10 questions each from economy, polity, environment, science and tech, geography, history. The questions are curated by Unacademy's best UPSC CSE educators. You will see a real-time leaderboard after every question to instantly know the answer you got right and know where you stand among other learners in India. Detailed video solutions after every contest so that you get it right the next time. Don't miss this opportunity. Hurry up. Enroll now. Link is in the description box below this lecture. So, our today's topic is the Northern Plain. आज का हमारा टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। हमने कल वाले टॉपिक में हिमालयास पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन. सो द नॉर्दर्न प्लेन्स आर सिचुएटेड इन दिस रीजन ऑफ अवर कंट्री. You can see this green colored region. Northern plains are situated in this region. This plain is situated just in the south side of Himalayas. Topic to be covered in this video: geological formation of the northern plain, physiographic divisions, climate, soil, biodiversity, significance of northern plains. तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. अब नॉर्दर्न प्लेन बने कैसे? ओके, ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है हिमालय से. हमने कल पढ़ा था कि हिमालय कैसे फॉर्म हुए, जब दो प्लेट्स आई और आपस में टकराई. जो बीच का रीजन था वो फोल्ड होके हिमालय में कन्वर्ट हो गया, जो पहले 30 हुआ करता था. ओके, ये वाला रीजन हिमालय में कन्वर्ट हो गया. अब हिमालय में ये रीजन, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराई होंगी, तब ये रीजन फोल्ड हो गया. लेकिन यहाँ पर इस साइड में एक वैली का निर्माण हो गया. ठीक है, जब हिमालयन रिवर्स यहाँ से बह के आती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं. वो सेडिमेंट्स उन्होंने यहाँ पे ला के जमा कर दिए और यहाँ पे एक प्लेन लैंड का फॉर्मेशन हो गया. The Himalayan uplift out of the Tethys Sea and subside the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin. एक बहुत बड़े बेसिन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया. उसका ही हम रिजल्ट यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे पूरे इस एरिया में हिमालय के, अगर हम बात करें साउथ एरिया में, तो यहाँ पे पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हो गया, जो कि हिमालय के द्वारा जो लाई गई. मेनली 3 रिवर्स हैं, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. मेनली इन्हीं 3 रिवर्स के द्वारा किया गया है ये. यहाँ पे प्लेन्स का फॉर्मेशन हो गया. Due to the uplift of the Himalayas in Tethys Sea, the northern part of the peninsula got subsided and formed large basin. The basin was filled with the sediments from the river which came from the mountain in the north and from the peninsula in the south. This extensive alluvium deposit led to the formation of northern plain. ठीक है, ये जो रिवर्स बहा के जो भी सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती हैं, उसी से ही एलुवियल यहाँ पे एक्सटेंसिव एलुवियल यहाँ पे डिपोजिट हो गया और यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ. नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय द एलुवियल डिपोजिट ब्रॉट बाय द रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. मैंने आपको बताया कि 3 मेन रिवर्स है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. 3 रिवर्स के कारण वहां पर नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है. और ये प्लेन कितने एरिया में है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और अप्रोक्सीमेटली 30 to 100 किलोमीटर्स तक. एवरेज विड्थ की बात करें तो प्लेन्स की एवरेज विड्थ है 150 to 300 किलोमीटर्स. So this is about geological formation of northern plains. Now physiographic division of northern plain. अब northern plain
है तो उसे बांटा किस तरीके से है। इसके लिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट है हिमालयास, ओके। फिर हिमालयास के बाद आता है कुछ रॉकी एरिया, कंकड़ वाला एरिया जिसे हम भाबर बोलते हैं। फिर आता है तराई रीजन, देन फिर आता है हमारा बांगर रीजन और खादर रीजन, ओके। फ्रॉम द नॉर्थ साउथ इट इज नॉर्थ टू साउथ इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन्स। अगर हम नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया तक देखें तो मेनली 3 रीजन में डिवाइड किया गया है इसे, भाबर रीजन, तराई रीजन एंड एलुविलियम प्लेन। ये जो भांगर और खादर है ये एलुविलियन प्लेन के अंदर आता है। भाबर रीजन, तराई रीजन एंड एलुविलियम प्लेन, ये हमारा हिमालय, ये है भाबर रीजन, ये है तराई रीजन, ये भांगर एंड खादर, और ये बीच में जो है यहाँ पे ये रिवर वैली जहां से नदी जाती है, ये रीजन है खादर वाला, ये है भांगर वाला। अब बात कर लेते हैं हम भाबर रीजन की। तो नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल्स टू शिवालिक फुटहिल एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप। शिवालिक फुटहिल्स जो है हिमालय का, हिमालय के जो सबसे लोअर हिमालयाज है जिन्हें शिवालिक फुटहिल्स भी कहा जाता है, उसी के पैरेलल है ये। 8 से 10 किलोमीटर तक नैरो बेल्ट है ये, ठीक है, रेंज करता है। द स्ट्रीम्स एंड रिवर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक एंड बाउल्डर्स and at a time disappear in rivers are disappeared in this zone. It is situated in the north side of तराई region. अगर हम बात करें भाबर जोन की तो यहाँ पे जो भी रिवर्स वगैरह जो माउंटेन से आती है, यहाँ से आती है, हिमालय से आती है, ये भाबर रीजन में जितने भी रॉक्स और बाउल्डर्स आती है लेकर आती है, यहाँ पे आके वो जमा कर देती है। और यहाँ इस एरिया में इस टाइप का एरिया होता है भाबर रीजन, देखिए तो इस टाइप के एरिया में रिवर जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, वो अंडरग्राउंड बहना स्टार्ट कर देती है। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ द तराई रीजन। जो तराई रीजन है, ये रहा तराई रीजन, इसका नॉर्थ साइड में सिचुएटेड है भाबर रीजन, ओके। ना तराई रीजन की बात हमें क्लियर है। अभी हमने देखा कि जो भाबर रीजन तराई रीजन के नॉर्थ साइड में है, तो भाबर रीजन के साउथ साइड में क्या होएगा, तराई रीजन। तो south of the Bhabar is the Tarai region. South of the Bhabar is the Tarai belt, which has an approximate width of 10 to 20 kilometers, where most of the streams and river re-emerge here. अब ये देख सकते हैं आप, ये कैसी लैंड है, इस टाइप की लैंड होती है उधर। इधर क्या होता है कि ये थोड़ा यहाँ पे ऐसा होता है कि जो रिवर डिसअपियर हो चुकी होती है भाबर रीजन में, वो तराई रीजन में आके फिर से री इमर्ज हो जाती है। ये साउथ एरिया में सिचुएटेड है भाबर के, और 10 to 20 किलोमीटर तक ये वाइड है। ये यहाँ पे मार्शी और स्वैम्पी कंडीशंस पाई जाती है, यानी कि थोड़े से स्वैम्पी और मार्शी लैंड पाई जाती है। हैज अ लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउसेज ऑफ वेरीड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे अलग अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ और बहुत लग्जूरियस ग्रोथ, नेचुरल वेजिटेशन की बहुत लग्जूरियस ग्रोथ होती है यहाँ पे। आप देख ही सकते हैं लैंड ऐसी है तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ होनी ही है, और वाइल्ड लाइफ, जब नेचुरल वेजिटेशन होगा तो वाइल्ड लाइफ तो होनी ही है। फिर है एलुवियल सॉइल रीजन। अब हमारा थर्ड जो था एलुवियल सॉइल रीजन, तो ये साउथ साइड में है तराई रीजन। ये देखिए हमारा हिमालय, फिर भाबर रीजन और तराई रीजन, और तराई रीजन का जो साउथ साइड है यहाँ पर हमारा सिचुएटेड है एलुवियल रीजन। अब इस डायग्राम में आपको ये कैसा दिख रहा होगा, ईस्ट में दिख रहा होगा, बट आप अगर इसे हमारे इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर इस अकॉर्डिंग ऐसे देखेंगे इस टाइप में, है ना, तो आपको ये साउथ साइड में दिखेगा तराई के। तो इस तराई वाला जो रीजन के साउथ साइड में है एलुवियल डिपॉजिट्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बांगर जो कि ओल्ड सॉइल एरिया है, और खादर जो कि न्यू सॉइल एरिया है, जो कि रिवर के आसपास होते हैं। अब देखिए, जब खादर एरिया किसको बोलते हैं, बांगर एरिया भी, यानी कि कभी ना कभी खादर एरिया होगा, बट क्या हुआ कि रिवर्स आई और रिवर्स ने उस एरिया तक जाना छोड़ दिया। एक टाइम पे रिवर ने उस एरिया तक जाना छोड़ दिया, तो वहां की जो मिट्टी होगी पुरानी हो गई, वहां तक अब रिवर्स नहीं पहुंच सकती, इसलिए उसे बांगर रीजन बना दिया गया। यानी कि बनाया नहीं गया है, ऑलरेडी नेचुरली फॉर्म हो जाता है वो तो ओल्ड सॉइल एरिया। और खादर रीजन जो कि है न्यू सॉइल एरिया, जहाँ पे हर ईयर रिवर अपनी मिट्टी लाके यहाँ पे इस एरिया में डिपॉजिट करते हैं। आप देख सकते हैं खादर रीजन, इट कंसिस्ट अ न्यूअर डिपॉजिट ऑफ एलुवियल सॉइल इज रिन्यूड एवरी ईयर। हर साल यहाँ की सॉइल रिन्यू होती है। जबकि अगर हम बांगर रीजन की देखें तो ओल्डर डिपॉजिट ऑफ एलुवियल सॉइल, एलुविलियम डिपॉजिट्स आर फ्रीक्वेंट विदाउट रिन्यूएबल। यहाँ पे
रिन्यू नहीं होते यहाँ तक, क्योंकि रिवर पहुंच ही नहीं पाती है. इट इज फाउंड ऑन द फ्लड प्लेन नियर बॉटम ऑफ द वैली. इट इज फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन नियर 30 मीटर्स अबव सी लेवल. दे मोर फर्टाइल इन नेचर, फाइनर इन नेचर टेक्सचर, सॉरी, एंड लेस फर्टाइल इन नेचर एंड कोर्स टेक्सचर. आप अगर बात करें तो ये वाली जो सॉइल है इस साइड वाली, ये फर्टाइल नेचर की है, लेकिन इधर की बात करें तो ये फर्टाइल नेचर की, लेस फर्टाइल नेचर की है. इट इज नोन एज धाय इन पंजाब. पंजाब में खादर रीजन को धाय कहा जाता है और बांगर रीजन को बैट कहा जाता है. ओके, नाउ रीजनल डिवीजन. ये तो हमने पढ़ा, ये फिजियोग्राफिक डिवीजन था. अब हम देख लेते हैं हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है इसका रीजनल डिवीजन कैसा था. आप देख सकते हैं ये इतना पूरा एरिया हमारा नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है. दिस एरिया इज नॉर्दर्न प्लेन एरिया. ये वाला एरिया हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, पूरा ये वाला. ओके, ये ब्रह्मपुत्र वाला प्लेन और ये लोअर गंगा वाला प्लेन. ठीक है, तो फर्स्ट है राजस्थान प्लेन, सतलज यमुना प्लेन, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन. फर्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन को और क्या बोला जाता है, कैसा क्या है यहाँ पे. तो इसे इंडो गैंगेटिक प्लेन भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज इंडो गैंगेटिक प्लेन. यहाँ पे 3 हिमालय जो रिवर्स है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे ये नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन करती है. 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया. और ये वेस्ट में राजस्थान से लेकर, दिस साइड से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है. फर्स्ट अगर हम देखें तो राजस्थान प्लेन, जो कि वेस्टर्न प्लेन का एग्जाम्पल है. ये जो प्लेन है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. ये हो जाएगा ईस्टर्न प्लेन, ये हो जाएगा वेस्टर्न प्लेन और ये हो जाएगा सेंट्रल प्लेन, जिसके अंदर ये तीनों आते हैं, अपर गंगा, लोअर गंगा एंड मिडिल गंगा. वेस्टर्न में आ जाएंगे राजस्थान एंड सतलज यमुना और ईस्टर्न में आ जाएंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन. तो हम बात कर रहे हैं इस प्लेन की, राजस्थान वाले प्लेन की. राजस्थान वाला प्लेन जो है वो है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ना. वेस्टर्न पार्ट में है, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में पूरा फैला हुआ है. अरावली से लेकर पूरा पंजाब, गुजरात और हरियाणा वाला जो रीजन है, इधर वाला जो रीजन है ना, ये कवर करता है. और द प्लेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सैंड ड्यून्स एंड बर्चांस. देखो इस तरीके का सैंड ड्यून्स वगैरह ये क्रिएट करता है, फॉर्म करता है. लूनी रिवर जो है, लूनी रिवर इसी के ही साउदर्न पार्ट से फ्लो होती है. राजस्थान के साउदर्न, इसी प्लेन के साउदर्न पार्ट से लूनी रिवर बहती है, यानी कि समझ लीजिए साउदर्न पार्ट है, इधर इस रीजन से लूनी रिवर बहती है. ओके, मैनी शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स ड्रेन दिस प्लेन मेकिंग देम फर्टाइल टू सर्टेन एक्सटेंट. दिस फर्टाइल ट्रैक्ट्स आर नोन एज रोही. सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, रोही. दिस प्लेन, यहाँ पे जो फर्टाइल रीजन है उसे हम बोलते हैं रोही, जो कि थोड़ी बहुत छोटी छोटी सीजनल स्ट्रीम्स आती रहती है, उससे इस रीजन का निर्माण होता है. यहाँ पे कुछ लेक्स भी हैं जो कि सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है. इस कारण से, क्योंकि उसका जो पानी होता है वो ब्रैकिश वाटर होता है, इसलिए उसको सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है उसको. ठीक है, यहाँ की लेक्स को. दिस इज अबाउट राजस्थान प्लेन विच इज ऑल्सो नोन, विच कम्स अंडर वेस्टर्न प्लेन. देखिए ये है हमारा, इधर राजस्थान प्लेन आएगा दिस साइड, यहाँ पे इस डायग्राम में शो नहीं है, दिस साइड राजस्थान प्लेन. ये है हमारा पंजाब प्लेन, ये गंगा प्लेन, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन. अब हम बात कर लेते हैं हमारे पंजाब प्लेन की, जो कि वेस्टर्न प्लेन का ही भाग है. अब इस रीजन में क्या है, कौन मेजर रिवर कौन सी है इस रीजन में, इंडस रिवर और सतलज रिवर इसके अंदर मेन है. अपन ने हमने इस स्लाइड में देखा था, ये सतलज रिवर, यमुना प्लेन भी, यमुना रिवर एंड इंडस रिवर. मेन रिवर की बात करें तो इंडस रिवर ही है. तो पंजाब प्लेन इज सिचुएटेड इन पंजाब, हरियाणा एंड पाकिस्तान. थोड़ा सा पार्ट इसका पाकिस्तान में भी है. सतलज, इंडस यमुना प्लेन भी कहा जाता है. सेंट्रल प्लेन की बात करें, हमारा पंजाब के जस्ट साइड में जो आता है सेंट्रल प्लेन, गंगा प्लेन भी बोला जाता है, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर, मिडिल गंगा एंड लोअर गंगा प्लेन.
हम अपर गंगा प्लेन की बात करें तो इस रीजन में गंगा, इस रीजन की बात करें हम अपर गंगा प्लेन की, तो इस रीजन में गंगा, गोमती, रामगंगा, घाघरा ऐसी रिवर्स हैं यहाँ पे जो कि सेडिमेंट्स वगैरह लाती हैं, यहाँ पे बहती है ना। एलुवियल दो आपका यहाँ पे निर्माण होता है। द plains are quite fertile and carrying out different agriculture activity। यहाँ पे बहुत एग्रीकल्चर एक्टिविटी इमेंस लेवल पे की जा सकती है क्योंकि ये बहुत फर्टाइल प्लेन है। ये इसके फर्टाइल होने के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन भी उतनी ही है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी एरिया में है अगर हम देखें तो। फिर है मिडिल गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन। इन दिस रीजन घाघरा, कोसी, सोन, गंडक एक्सेट्रा और दिस एरिया इज सिचुएटेड बिटवीन गंडक रिवर टू कोसी रिवर। गंडक रिवर से कोसी रिवर तक में ये जो प्लेन है ये सिचुएटेड है। फिर हम बात करें लोअर गंगा प्लेन, इट कवर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल। द साउदर्न पार्ट ऑफ द प्लेन फ्रॉम द सुंदरबन डेल्टा, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। देखिए आप इसको देख सकते हैं कि ये वाला जो प्लेन है ये उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश समझ लीजिए यहाँ आता है, इसके ईस्टर्न पार्ट से लेकर सुंदरबन डेल्टा आता है साउथ में, वहां तक इस एरिया के साउथ पार्ट में सुंदरबन डेल्टा आता है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ तक एक्सटेंड होता है ये लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में ये पूरा एरिया कवर करता है। उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न एरिया कवर करता है और बिहार के कुछ पार्ट्स और वेस्ट बंगाल। लास्ट इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये किस एरिया में है? मेनली ये असम एरिया में है। दिस वन इन द असम एरिया। अब इस एरिया की बात करें तो रिच इन एलुवियल डिपॉजिट, द प्लेन इज ऑफन प्रोन टू मैसिव एंड फ्रीक्वेंट फ्लड्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड अफेक्टेड एरिया माना जाता है इसको, और फॉर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जूट, राइस, व्हीट, शुगर एक्सेट्रा। ये एरिया जूट, राइस, व्हीट, शुगर यानी कि और भी ऐसी चीजों के लिए सूटेबल है। और यहाँ पे माजुली की लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, नदी द्वारा बनाया गया द्वीप माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है ना, वो यहीं पर ही है, इसी एरिया में है, ब्रह्मपुत्र प्लेन के इधर। नाउ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एक्सपीरियंसेस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो ये वाला पार्ट है, दिस एरिया कि राजस्थान वाला एरिया है ना, ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे समर हॉट होती है और विंटर कोल्ड हुआ करती है बहुत, और जो एयर होती है इसके अंदर मॉइस्चर की थोड़ी कमी होती है। अब अगर हम बात करें इसकी ईस्टर्न साइड की, इस साइड ब्रह्मपुत्र प्लेन है इस साइड, तो इसके ईस्टर्न साइड में अगर हम देखें तो यहाँ की विंटर माइल्ड होती है और जो समर होती है ये हॉट होती है। इस साइड की अगर हम देखें तो समर कैसी होती है इसकी हॉट, विंटर कैसी होती है माइल्ड होती है, यानी कि ना ज्यादा ना कम। अगर हम इसके कोस्टल रीजन्स की देख ले थोड़ी सी, दिस साइड ये कोस्टल रीजन वाला साइड है, ये वाला साइड जहाँ पे लोअर गंगा प्लेन आता है, ये वाला साइड, तो यहाँ पे इक्वेटेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें मिलता है, यानी कि ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। देन बायोडाइवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ फाउंड इन द वर्ल्ड और पर्टिकुलर एरिया। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने वैरायटी और प्लांट्स और एनिमल लाइफ की वैरायटीज पाई जाती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन में बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बहुत बड़ा एक बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है जो कि है सुंदरबन वाला एरिया। यहाँ पे मेनली मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सुंदरबन वाला एरिया कहाँ बनता है? यहाँ पे देखो सुंदरबन वाला नेशनल पार्क शो हो रहा है और इसी एरिया में सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया है। तो यहाँ सुंदरबन डेल्टा बनता किससे है? जब गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर ये दोनों रिवर ज्वाइन होती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, उस एरिया में सुंदरबन डेल्टा बनता है। तो यह एरिया बहुत ज्यादा यानी कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी उतनी है, और अगर हम बात करें तो ट्रीज वगैरह भी बहुत है, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एनिमल फाउंड इन द सुंदरबन इज अ रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे बोला जाता है सुंदरबन एरिया इज अ हाउस ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सम अदर एनिमल्स आर, और जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में जो भी पाए जाते हैं अदर एनिमल्स वो है इंडियन राइनोसोरस, सुमात्रन राइनोसोरस, इंडियन एलिफेंट्स, एंटीलोप्स, गैजल, व्हाइट
स्ट्रिप्ड हिनास एंड मैनी मोर। और कुछ बर्ड्स भी पाई जाती है जैसे व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, रेड जंगल फाउल, ग्रेट इंडियन हॉर्न्ड आउल, सनबर्ड एंड वल्चर, पैट्रिजेस, सैराग्रॉस एंड मैनी मोर। तो इस तरीके की वाइल्ड लाइफ यहाँ पाई जाती है। नाउ सॉइल फाउंड इन द नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न प्लेन्स में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है। अब ये पूरा इंडिया का चार्ट है, इसके अंदर बताया गया कि इंडिया में कैसी कैसी, तो हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये वाला जो रीजन है, जैसे हमने जो देखा अभी, ये वाला रीजन ऐसा, और इधर से ये ब्रह्मपुत्र प्लेन वाला रीजन। तो इस एरिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे मेनली एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल का एरिया है ये, क्योंकि रिवर्स आती है, रिवर्स अपने सारा यहीं पे जमा करती है, जो भी सेडिमेंट्स लेके आती है, इससे एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, और यहाँ पे एलुवियल सॉइल का एरिया इसको कहा गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये यहाँ पे तो राजस्थान प्लेन भी आता है, तो राजस्थान प्लेन में थोड़ा सा एरिया जो होता है ये यानी कि एरिड सॉइल का एरिया है ना, सैंडी सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, सैंड ज्यादा पाई जाती है। और थोड़ा सा एरिया जो इधर वाला है सुंदरबन और ये वाला एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा है ना सॉइल और मार्शी सॉइल पाई जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा वेट एरिया है, वेट रीजन है ये। Majorly alluvial soil is found in this area which is very fertile in nature. It contains sand, silt and clay brought by the rivers of this region. ठीक है, मेनली alluvial soil मिलती है जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। यहाँ पे खेती बताया गया कि खेती सबसे ज्यादा होती है, इसलिए पॉपुलेशन जनसंख्या भी इधर ही सबसे ज्यादा है। और दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, खादर एंड बांगर। खादर है न्यू सॉइल एंड बांगर है ओल्ड सॉइल। कॉन्स्टिट्यूट रिच एंड इंस्टेंस डिपॉजिट ऑफ एलुवियल सॉइल। यहाँ पे बहुत ज्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल के अंदर डिसेंट अमाउंट में लाइम, पोटाश और फॉस्फोरस पाया जाता है। आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप सच एज पैडी के लिए, शुगर कैन के लिए, व्हीट के लिए, मेज के लिए, राइस के लिए, पल्सेस के लिए, सीरियल क्रॉप्स के लिए ये जो सॉइल है ये सूटेबल है। कुछ डेजर्ट सॉइल यानी कि मैंने बताया ना जो राजस्थान प्लेन वाला एरिया है, यहाँ पे डेजर्ट सॉइल भी तो मिलती है ना, इस साइड में डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। तो डेजर्ट सॉइल और एरिड सॉइल इज ऑल्सो फाउंड हियर, स्पेशली इन राजस्थान प्लेन। इट इज लेस फर्टाइल सॉइल एंड कंटेन लेस मॉइस्चर। अब वो ऐसे एरिया में होती है जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल वगैरह नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ की सॉइल ज्यादा फर्टाइल भी नहीं होती है और ज्यादा मॉइस्चर भी नहीं होता है। और पिटी एंड मार्शी सॉइल मैंने आपको बताया, तो ये पाई जाती है सुंदरबन डेल्टा में, है ना। तो वेटलैंड वाला थोड़ा सा वेट रीजन हो जाता है दिस एरिया, यहाँ पे पाई जाती है। नाउ वेजिटेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन का वेजिटेशन कैसा है। अब हम वेजिटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो ये बात करें कि यहाँ का वेजिटेशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, ये प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे लैंड वगैरह भी वेजिटेशन यानी कि किसी क्रॉप वगैरह को उगाने के लिए किसी चीज को, बाकी वो चीज तो अलग है। बाकी वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे साल, मैनग्रोव्स, हार्डवुड, टिम्बर ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। लैंड जो है यहाँ पे प्लेन है, माउंटेनियस रीजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाकी यहाँ पे प्लेन लैंड है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। In addition to the fertile soil excellent for the irrigation, the northern constitute rich vegetation, especially in southeastern part. In this part, हम ये बोल सकते हैं जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट साउथ ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत अच्छा होता है। The plain areas are the home of the large variety of plant and trees. प्लेन एरियाज को बोला जाता है जो कि प्लांट एंड ट्रीज का होम बोला जाता है, और नॉर्दर्न प्लेन तो पूरा ही प्लेन है। सो सम ऑफ द पॉपुलर वेजिटेटिव ग्रोथ्स इन दिस रीजन आर साल वाला ट्री और मैंग्रोव और हार्डवुड टिम्बर ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। मोर टू दिस प्लेन आर एक्सीलेंट फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स के लिए, जैसे कि व्हीट, राइस, मेज एंड शुगर कैन, इसके लिए भी ये एरिया बहुत ही अच्छा है। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन। हम पूरे ग्रेट इंडियन प्लेन का अगर सिग्निफिकेंस देखें, हमने इतनी सारी उसकी चीजें देखी, वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी, सॉइल वगैरह, इससे हमको उसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस तो ऑलरेडी पता चल ही चुका होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह ये वाली एक्टिविटीज, और प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में घर बनाने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ना, और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या इसी एरिया में है।
इंडिया की अगर हम फुल इंडिया की बात करें तो इसी एरिया में अधिकतर जनसंख्या इसी एरिया के अंदर निवास करती है। इनकॉर्पोरेट वास्ट पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक पावर्स, है ना, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक पावर्स भी रखते हैं ये एरिया, ये वाला पूरा नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया। दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है, वो इसी एरिया के अंदर है, इसी नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर ही है। साथ ही साथ जो आर्यवत सिविलाइजेशन आई थी वो इसी प्लेन में बिगेन हुई थी, इसी यहीं से स्टार्ट हुई थी। रामायण महाभारत जैसे जो चीजें हुई थी वो इसी रीजन में हुई थी, है ना। श्री राम और श्री कृष्ण भगवान इसी रीजन से बिलोंग करते हैं। विटनेस मेजर सिविलाइजेशंस, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसे सिविलाइजेशन के भी यहीं से विटनेसेस मिले हैं। बहुत सारी होली साइट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, है ना। और पॉपुलेशन अराउंड 65 करोड़, यहाँ की कितनी पॉपुलेशन है, 65 करोड़ अराउंड पॉपुलेशन है। दिस प्लेन कल्टिवेट्स अराउंड 60% ऑफ द इंडियन फूड प्रोडक्शन। और पूरे इंडिया का अगर हम ओवरऑल फूड प्रोडक्शन की बात करें तो 60% का फूड प्रोडक्शन इसी एरिया में होता है। और पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा इसी एरिया में रहती है, 65 करोड़ अराउंड अप्रोक्सीमेटली। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. I hope you understand. Thank you.